had to buy this house and we came into this house. और जहाँ हम खड़े हैं असल में हमने इसको कोविड के बाद एक चर्च की तरह बना लिया. And right after COVID, right where we are standing, we turned this whole place into a church. और यहाँ से हम अगले एक साल से भी ज्यादा अरसा यहाँ से इबादत करते हैं. And for more than a year, we stood in front of these curtains and worshiped the Lord and led church. और क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग दुनिया के और हिस्सों से भी हैं जो इबादत करते हैं. And because there's people who join us from different parts of the world and worship with us. हम पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर चर्च नहीं है जहाँ के लोग हमारे साथ मिलते हैं और इबादत करते हैं. And there's places in Pakistan there where there is no church and people from that place join with us and we have church. मुझे याद है कि मैंने उस वक्त जितनी मुनादी की उतनी उस वक्त भी नहीं की जब कोविड नहीं था. And the amount of preaching that I did during COVID, I did not do before COVID. तो खुदा ने हर एक चीज को पहले से अरेंज किया हुआ था. And God had arranged everything beforehand. जो कुछ हम इस घर में आके कर सके इससे पहले वाले घर में वो मुमकिन नहीं था. And the things that we were able to do in this house, we were not able to do in the previous house. मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है. And I'm simply trying to tell you that how wonderfully God works in our lives. इसलिए हमें खुदा के साथ बढ़ते चले जाने की जरूरत है. This is why we need to continue to grow with God. मैं नहीं जानता आने वाला वक्त क्या है लेकिन मैं समझता हूँ कलीसिया के लिए आसान वक्त नहीं होगा. And I don't know what the time to come brings for us, but I know it's not going to be easy time. क्योंकि रैप्चर से पहले कलीसिया पर मुश्किल वक्त आना है. Because before rapture, persecution must be there. और खुदा ने मेरे दिल में ये बात रखी है कि अगर फिलेमोन के घर की कलीसिया हो सकती है या निम्फास के घर की कलीसिया हो सकती है तो मेरे घर की क्यों नहीं. And I believe that the Lord put it in my heart that if Philemon can have a church in his house, why can't we have a church in our house? तो बाइबल के अंदर हमको ऐसे खानदान मिलते हैं जहाँ पर ये खूबसूरती से लिखा है घर की कलीसिया. And we find it in the Bible that there's places and people who the Bible refers to the church of that family. और अगर मुझे अपने खानदान की निजात की फिक्र नहीं है तो मैं क्या बोझ लेकर आगे बढ़ रहा हूँ. And if I do not have the burden for my own family, so what kind of burden am I going forward with? ये जरूरी नहीं कि मेरा खानदान बच जाए, हो सकता कुछ और नताए जाएं. And it's not a guarantee that my family will be safe and maybe there's some other results. लेकिन तो भी हमें खुदा के सामने दयानतदारी से ऐसे ही आना है. But we have to come in such a way faithfully before God. अगर किसी के लिए उसका साथी दुनिया में अहम नहीं है तो हमें बाइबल को दोबारा पढ़ने की जरूरत है. And if somebody thinks that their spouse is not important to them, then they need to read the Bible again. और अगर हमारे बच्चे हमारे लिए अहम नहीं है तो हमें बाइबल को में से पढ़ने की जरूरत है. And हम कहाँ हैं? And if our children are not important to us, then we need to read the Bible and see where we're at. इसलिए खुदा का कलाम बड़ी सच्चाई से हमको सिखाता है. This is why the Bible teaches us with much truth. हम खुदा के साथ असूल खुद नहीं बना सकते. We cannot make our own rules while having a relationship with God. हमें खुदा के ताबे होने की जरूरत है. We need to be obedient to God. हमें खुदा के कलाम के नीचे आने की We need जरूरत to है. be under the Word of God. खुदा का कलाम हमें बड़ी सफाई से चीजों को देता है. The Word of God gives us things very clearly. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस जगह पहुंच गया हूं या मैं कामिल हो गया. And this does not mean that I have achieved everything and I am perfect. मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं कहूं मेरा खानदान सब खानदानों से अच्छा और मैं सबसे अच्छा हूं. And I am not at a place where I can say my family is better than all other families and I am the best. या मैं किसी के साथ मुकाबला करना चाहता हूं. Neither do I have any competition with anybody. हमारा कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं है. None of us have competition with each मैं other. समझता हूं आपकी जिंदगी के चैलेंजेस बहुत फर्क है. I believe that the challenges of your life are very different. मैं समझ सकता हूं कि हम एक मुश्किल वक्त में से जा रहे हैं. And I understand that we're going through a hard work. मैं हर एक माँ और बाप को दिलेर करना चाहता हूं. I want to encourage each and every parent. मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता कि यहाँ खड़ा होकर मैं आपकी जजमेंट करूं. And I don't want to discourage you to judge you while standing at this place. मैं सिर्फ आपकी डायरेक्शन ठीक करना चाहता हूं. I simply want to change your direction. क्योंकि अगर हम खुदा की बादशाही की तलाश नहीं कर रहे, Because if we're not searching for the kingdom of God, और उसकी रास्तबाजी की तलाश नहीं कर रहे, and we're not searching and looking for His righteousness, कुछ खास किस्म की गलती है जो हमसे हो रही है. there's a big mistake that we are making. खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत आसान किया है. Jesus made it very easy and clear for us. उसने कहा सबसे पहले खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो. And He said, first ye seek the kingdom and the righteousness.
और ये सब चीजें तुम्हें मिल and जाएंगी। all these things shall be added unto you. हम मुझे कुछ भी खुदा की बादशाही के बगैर नहीं चाहिए। I do not want anything without the kingdom of God. आपको भी कुछ भी खुदा की बादशाही के बगैर नहीं चाहिए। And you should not ask anything from God with the exception of his kingdom. हम कभी भी अपनी अब्दियत आग में नहीं गुजार सकेंगे। We are not made to face our eternity in hell. ये बहुत बड़ा नुकसान होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। And this is a pain that we cannot even imagine. यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ कट जाए तो कोई बात नहीं। Jesus said if your hand is cut off then it's okay. एक हाथ के साथ आसमान की बादशाही में जाना अच्छा It is better to go to heaven with one hand कि तू दो हाथों के साथ आग में चला जाए। for you to go with two hands into hell. अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाती है निकाल के If फेंक। your eye offends you then cast it out. एक आंख के साथ आसमान की बादशाही में जाना अच्छा है Because it is better to go to heaven with one eye कि दो आंखें लेकर हम आग में चले जाएं। than for you to have two eyes and go to hell. इससे हमें अंदाजा होता है कि आने वाला वक्त खुदावंद हमें किस तरह उसका चैलेंज दे रहा है। And we can understand that what kind of a challenge we will face in the future. क्योंकि मेरे अजीजों ये मेरे और आपके पास है। Because this is with me and with you. हम सिर्फ खुशखबरी का कलाम दे सकते हैं। We can only give the gospel. चुनाव आपके पास है। You have to make the decision. आपको फैसला करना है। You will have to make the choice. आप खुदा को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। You give God the right to work in your life. वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है। He is knocking on the door. आपको खोलना है। You have to open the door. वो कभी दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं He आता। has never busted open a door and came inside. वो कभी आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी जिंदगी में काम नहीं कर He will सकता। never work in your life against your will. आपको अपनी मर्जी खुदा के ताबे करनी है। You have to surrender your will. आपको चुनाव करना है हमेशा की जिंदगी You का। have to choose the everlasting life. मैं नहीं समझ सकता कि मैं कैसे आपको इसको बेहतर तौर के बता सकता हूँ। And I don't know how much better I can explain it to you. मैंने पिछले महीने पाकिस्तान में 3 खानदानों को विजिट किया है And last month I visited 3 families in Pakistan. और मैंने हर खानदान के अंदर एक ही कलाम को बुनियादी तौर पर सुनाया है। And foundationally I preached the same message in each family. और लूका की इंजील के 9वें बाब की 25वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए या उसे खो दे उसे क्या फायदा। And Luke chapter 9 verse 25 says, if man gains the whole world but loses his own soul, what does he gain? हम किस तरह के नफे के अंदर जी रहे? What kind of a gain are we having in our life? हम अपनी जान के बारे में क्या कर रहे हैं? What are we doing about our soul? क्या हमारी जान की हमें कोई फिक्र है कि नहीं है? Do we have any burden for our own soul? हम अपनी जान को क्या खिला रहे हैं? What are we feeding our soul? या सिर्फ हमको अपने पेट की फिक्र है? Or either we are only worrying about our stomachs? क्या हमारे अपने जिस्म की भी कोई फिक्र है या सिर्फ कपड़ों की सारी फिक्र है? Do we only worry about our clothes or do we also care about our body? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? Which one is more important? खुदा हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। God wants to do everything for us. हो सकता है कई दफा आप सोचें कि ये मुनादी हमें पसंद नहीं है, And maybe you will think, we don't like this kind of a preaching. लेकिन ये हमारी जरूरत है। But this is our need. हमें जरूरी है कि पता हो It is our need that we know जब हम इस जमीन से जाते हैं, when we go from this world, आपका स्मार्टफोन या आपकी एप्पल वॉच कितनी भी चाहे फास्ट है, no matter how fast your phone and your Apple Watch is, इससे पहले कि दुनिया के किसी शख्स को भी पता चले कि आप दुनिया में नहीं रहे, आप अपनी मंजिल पर जा चुके होंगे। before anybody in the world knows that you're no longer here, you have already reached your destination. और सिर्फ दो ही जगह हैं, And there's only 2 places you can go. या हम आराम में चले जाते Either you will go into peace हैं या हम अजाब में चले जाते हैं। or you go into torment. कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। There is no middle ground. और मेरे अजीजों हमारे पास आज मौका है। And we have the choice today. खुदावंद को कहें, खुदावंद मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए। Say, God, I need that everlasting तूने life. मुझे जिंदगी दी है, You have given me life. मुझे हमेशा की जिंदगी दे। Give me the everlasting life. जिस तरह मुझे जिंदगी दी है, Just like how you gave me life. मेरे खानदान को जिंदगी, Give life to my family. मेरी बीवी को, Give life to my wife. मेरे शौहर को, To my husband. मेरे बच्चों को, To my children. मेरे पड़ोस को, To my neighborhood. मेरे चर्च के लोगों को, To the people of my church. ताकि हम में से कोई आग में एंड अप ना कर जाए। So none of us could go to hell.
एक शख्स को अपने 5 भाइयों की फिक्र थी जो दुनिया में थे। A man was worried about the 5 brothers that were still alive in the world. वो इब्राहिम से कह रहा था लाजर को भेज के उनको जाकर कहे, And he was saying to Father Abraham, send Lazarus so he can talk to my brothers. ताकि वो तौबा करें और यहाँ ना आ जाएं। So they repent and do not come into this torment. खुदावंद यीशु ने एक शख्स की कहानी हमें बताई है। Jesus told us the story of one person. वो सब कुछ रखते हुए भी कहता मैं हार गया हूँ। And even after achieving everything, he said, I have lost. और वो शख्स जो उसके दरवाजे पर था, उसका ख्याल था वो जीत गया। And the person who was on his doorstep had won. और मेरे अजीजों, ये सब कुछ हमारे सामने है। And this is the reality before us. ये खुदा का कलाम है। This is the word of God. आपका ख्याल है खुदा तरफदार है। You think that God takes sides. आपका ख्याल है कि खुदा मेरे लिए कुछ फर्क करेगा। You think that God's going to do something different for me. मैंने कई लोगों को जिंदगी में देखा, वो कहते हैं हम खुदा के बहुत स्पेशल हैं। I have seen many people say in their life that we are very special to God. मैं भी बहुत स्पेशल हूँ। And I am also very special. लेकिन खुदा ने अपना कलाम मेरे लिए कभी नहीं बदला। But God has never changed His word for me. मेरे स्पेशल होने के बावजूद उसने कहा जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। Even though I am special, He has still said you have to obey what I've और यही written. उसके स्पेशल होने की कहानी And this is the beauty of His speciality. यही उसका स्पेशल था And this is His speciality. कि वो हर एक को एक ही तरह लेता है। That He takes everybody the same way. इसलिए मेरे अजीजों, हमें उसके कलाम की ताबेदारी करनी। This is why we have to obey His word. जिंदगी को चुनिए। Choose life. हमेशा की जिंदगी को चुनिए। Choose everlasting life. आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। You will receive everything in जो life. कुछ भी आपकी जरूरत है, Whatever is your need, खुदा जरूर पूरी करेगा। God will fulfill. मेरी जिंदगी ऐसी गवाहियों से भरी हुई। My life is full of such testimonies. मैं उन दिनों को कभी नहीं भूला। I have never forgotten those days. हो सकता है मैं वो सारी बातें बताऊं और मेरे घर के लोग या मेरे बेटे या मेरी वाइफ कहें कि शायद ये बताना जरूरी नहीं था। And I might tell you things that my kids and my wife might say it was not necessary to tell them those मैं किसी things. को शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं करता। And I'm not telling you these things to embarrass मैं अपनी you. फैमिली को बहुत प्यार करता I हूँ, love my family. लेकिन मैं याद रखता हूँ खुदा ने मुझे कहाँ से उठाया। But I remember where God picked me up from. जब मैं 10वीं में पढ़ता था, मेरे घर में बत्ती भी नहीं थी। When I was in 10th grade, I did not have electricity in my house. मैं अपने हाथ से अपना दिया बनाकर उससे पढ़ता था। I used to make the candle by my hand and light it and read and used to study. वहां से खुदा ने मुझे उठाया। And from that place, God picked me up. जब खुदा ने मुझे निजात दी, When God gave me salvation, तो फिर वो चीजों को बदलता और बदलता चला गया। He kept changing things and upgrading my life. और खुदा ने सब कुछ दे दिया। And God has given me everything. हमेशा की जिंदगी, Everlasting life. हमेशा की जिंदगी। Everlasting life. मैंने खुदावंत को कहा है, I have said to God, खुदावंत मुझे बचाए रखना। God, keep me saved. मैं तेरे साथ अब्दियत गुजारना चाहता हूँ। I want to spend my eternity with you. मुझे आसमान के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, I do not know many things about heaven, बस मुझे यीशु का पता है। but I only know about मैं उसके Jesus. साथ सदा रहना I चाहता हूँ। want to stay with Him. जब मैं अपना सफर यहाँ पूरा When करूँ, I finish my journey here, मेरी सिर्फ एक दुआ है, I only have one prayer. खुदावंत मैं तेरे साथ रहना God, चाहता I want to stay with you. हूँ। मुझे कुछ शहर ना भी मिले कोई नहीं, If I don't get a city, that is okay. मुझे कुछ हुकूमत करनी ना भी मिले कोई बात If नहीं, you don't give me any government, that's okay. लेकिन मुझे तेरे साथ रहना। But I want to spend my time with मैंने you. सालों तेरा इंतजार I किया, have waited years for मैं तुझे you. देखना चाहता I हूँ, want to see you. मैं तेरे लिए जीना चाहता I हूँ, want to live for और you. मैं चाहता हूँ जो मेरा सफर पूरा हो, And when my journey is over, मुझे एक सेकंड भी ऊपर नहीं चाहिए। I don't want 1 second over. I want you, I want you immediately. मैं तुझे चाहता हूँ, I want you. और मेरा ये डिसीजन है, And this is my decision. और मैं हर रोज इसको अपनी जिंदगी में नया होता And I देखूंगा। will see this renew in my life every day. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा की जिंदगी के लिए जी रहे हैं? क्या आपकी प्रायोरिटी हमेशा की जिंदगी है? Hallelujah. Yes बेटा, हालेलुया, I need your Jesus। आइए खुदा का शुक्र करें। Let's give thanks to हालेलुया, God. हालेलुया। Hallelujah. अगर आदमी सारी दुनिया हासिल If कर a ले, man gains the whole world, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, even though it's very hard, यीशु ने कहा लेकिन अपनी जान खो दे, Jesus said, if you lose your soul, उसे क्या फायदा what do होगा? you benefit? हमारी जान इतनी कीमती है, This is how important our soul is. ये मेरे और आपके लिए क्यों जरूरी नहीं है? Why is it not important for me and you? जिसके लिए खुदा का बेटा मर गया, The soul that the Son of God died for. जिस जान के लिए उसने हमारा फिदिया दिया, The soul that He
give redemption for? वो हमारे लिए जरूरी क्यों नहीं है? Why is it not important to us? मेरे लिए मेरी जान जरूरी क्यों नहीं है? Why is it my soul not important to me? ये खुदा का मंसूबा नहीं है। This is not the decision of God. ये दुश्मन का काम है। This is the work of the devil. वो चाहता है आपको आग में लेकर He जाए, wants to take you to hell क्योंकि वो वहां जाएगा। because that's where he is going. वो उसी के लिए जगह बनाई गई है। That place is made for him. हमारे लिए तो आसमान बनाया गया, But heaven is made for us. आपके लिए तो आसमान बनाया गया। Heaven is made for you. हम क्यों आग में जाएं? Why should we go to hell? कि खुदा मौजूद है, हमारे पास वक्त मौजूद है। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए दुआ करें, एक दूसरे के लिए बरकत मांगे। खुदा आपको बड़ी बरकत है। मैं आपकी जिस्मानी बरकतों को बड़ी कदर से देखता हूँ। मैं आपकी humiliation नहीं करता। मुझे अपनी पार्किंग लॉट में अच्छी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। लेकिन एक बंदे की, एक गरीब आदमी की एक और दरखास्त मानिए। आपकी जायदाद में एक और चीज चाहता हूँ, हमेशा की जिंदगी। आपकी औलाद की दौलत में एक और चीज भी चाहता हूँ, हमेशा की जिंदगी। I want to add a richness to your life. Add the everlasting life into your inheritance. आपकी शुक्रगुजारी में हमेशा की जिंदगी भी है। Does your thanksgiving involve everlasting life? क्या आप कह सकते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे हमेशा की जिंदगी दी? Can you say, God, I'm thankful that you gave me everlasting life? यही सबसे कीमती है। This is the most important. इसी के लिए खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ है। For this, the Son of God died. ओह मेरे गुनाहों के लिए मर गया है, He died for my sins. ताकि मैं जीता रहूं, So I keep living. कभी ना मरूं। So I never die. हो खुदा का प्लान कैसा जबरदस्त। How wonderful is the plan of God. आइए खुदा से प्यार करें, Let's love the Lord. Hallelujah. उससे एक रिश्ता बांधें Let's make a relationship with Him. जो वक्त का कैदी नहीं है, A relationship that is not bound by time. जो संडे का कैदी नहीं है, A relationship that is not bound of a Sunday. वो सुबह और शाम का कैदी नहीं It's है। not bound by morning or evening. वो एक रिश्ता है जो सदा दिल के अंदर जिंदा है। It's a relationship that is always alive in your life. Hallelujah. Let's pray together. Hallelujah. Praise the Lord. आइए एक दूसरे के लिए दुआ करें, मेरे घर के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरी बीवी के लिए दुआ करें। इस सफर के अंदर हम हार ना जाएं। दुश्मन हमें छोड़ नहीं गया, दुश्मन की आंख हमसे हट नहीं गई है। वो चाहता है हमें गिराए, लेकिन हम खुदा के फजल से, खुदा के रहम से, खुदा के तर्ज से बड़े चले जाएंगे। आप खुदावन से कहें, खुदावन मेरे घर को कलीसिया बना, मेरे घर की कलीसिया हो, मेरे बेटे, मेरी बीवी, मेरा साथी, मेरी औलाद, हम एक कलीसिया की तरह बैठे हो, हम तेरे ऑर्गन बन जाएं, the organ of your body, the living body. Hallelujah. Jesus need laborers. Hallelujah. Isakabara Salaman. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र। Hallelujah. अपने बच्चों के लिए शुक्र करें। Thank you. Thank you. Hallelujah. This song is a beautiful song कोई पार किसे दा मोड़े ते कोई पार किसे दा मोड़े ते नहीं चुकदा तेरे साज honoring the blood of Jesus. के दुश्मन दारी दी सानू प्यार दा गीत सिखा दिता की करा तेरे प्यार दा मैं की करा तेरे प्यार दा मैं जेड़ा सूली ते मर के वखा देता कोई मर के कदी जी उठदा नहीं ए भी करके तू आप वफा देता की बयां करा असी डिग पैंदे तू चुक रैंदा असी डिग पैंदे
चुक रहेगा फिर चुक के गले न लगाना है शैतान दजे करवार हुए शैतान दजे करवार होवे तू टाल मेरी बढ़ जाना है तू अपने लहू दी लो करके पापा दा दाल मिटा दिता की बयान करा तेरे प्यार में की बयान करा Hallelujah Jesus Amen. Let's खुदा pray. के शुक्र करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं।